Bismillahirrahmanirrahim. Lab number 13, single phase inverter. Today we will study how to implement single phase inverter. In figure 1 you can see the circuit diagram of single phase inverter. There are four switches, S1, S2, S3 and S4, a DC power supply and a load. We want to convert the DC signal into a bipolar square wave. Means requirement is that we have a pure DC signal and we want to convert that signal into a bipolar square wave. So for that we will be using a single phase inverter. Single phase inverter are mainly used to convert DC signal into AC signal. So how it works, we will discuss this, and then how to implement this circuit we will discuss in detail. First let me describe how single phase inverter circuit works, and then we will study how to implement this circuit on Proteus or multisim. So as I said that the input is a DC source and there are four switches and a load. So consider that if S1 and S2 are in conduction state, then what will happen? So S1 and S2, they will act as a short circuit and current will flow through the load from left to right, and we will be getting voltage across the load that will be approximately equal to the DC source that we are applying to the circuit. Means if we are applying a 10 volt signal, 10 volt DC signal to the inverter, so if S1 and S2 are closed, 10 volt will appear across the load and current will flow through the load because there will be voltage across the load. So we know that by Ohm's law V is equal to IR, and if the path is closed, current will flow, and the current will which path the current will follow? It will flow through S1 and then through the load and then to S2, because S3 and S4 we are considering that they will be open, so they will provide infinity resistance or they will not provide path to the current. So as I said, they consider that if S1 and S2 are closed, current will flow through the load from left to right. Now second case we can consider as that, let's consider that S1 and S2 are opened and S3 and S4 are closed. So now what will happen? If S3 and S4 are closed, current will flow through the load from right to left. If S1 and S2 are opened and S3 and S4 are closed, current will flow through the load from right to left. And if S1 and S2 are closed and S3 and S4 are open, current will flow from left to right. So we will be getting a bipolar square wave across the load. So to obtain a bipolar square wave across the load, we need four switches, and we have to turn S1 and S2 so that current flow from left to right for half of the period, and then we have to turn on S3 and S4 so that current flow from right to left for the other half of the input. So is it clear how it works? सर ये तो एच ब्रिज का ऑपरेशन ही है सर? जी बिल्कुल, एच ब्रिज का ये ऑपरेशन है. यहाँ पे इसको देखिए ना, सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर है. राइट सर. ठीक है. तो जिस तरह सिमिलरली वो जो ईसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, जो डायोड से हम ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं, उसमें भी एक टाइम पे दो डायोड्स कंडक्ट करते हैं. यहाँ भी ऐसा ही है कि दो स्विचेस जो हैं वो कन्वर्ट करेंगे. सर स्विचेस को ऑन ऑफ करने के लिए वो TR494 की डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल करेंगे. जी बिल्कुल, वो आगे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ पहुंच सकते हैं. आप ड्राइवर से टर्न ऑन द स्विचेस. ठीक है.
तो हमें ड्राइवर सर्किट की ज़रूरत होगी ताकि हम प्रॉपरली जो स्विचेस हैं ये क्या हो, ये प्रॉपरली टर्न ऑन एंड ऑफ हों, ठीक है। क्योंकि मेनली अगर इसमें कोई मसला होगा तो वी विल बी नॉट गेटिंग द रिक्वायर्ड आउटपुट। अच्छा, इसमें जो मेन इशू ये भी है कि देखिए ना, इफ S1 एंड S4 और अगर ये S1 ऑन है और S4 भी ऑन हो जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी। सो वी हैव टू टेक केयर कि अगर S1 ऑन है तो S4 शुड बी इन ऑफ स्टेट। सिमिलरली अगर S3 ऑन है तो S2 जो है वो, और अगर S2 या S4 जो है दे आर ऑन और S1 या S2 S3 ये भी ऑन है, तो फिर सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी और दैट कैन डैमेज, जो कि क्या बहुत हाई करंट फ्लो कर सकता है, जो कि हमारे सर्किट को भी उड़ा सकता है, और आल्सो जो सप्लाई है वो भी ख़राब हो सकती है, ठीक है। सो वी नीड a certain dead time between the signal that we will be applying to S1 and S4, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आइडियली हम डिले को, जो कंपोनेंट डिले है उसको हम इग्नोर करते हैं, ठीक है, वो माइक्रो सेकंड या माइक्रो सेकंड में ही होती है, बट वी इग्नोर दैट डिले। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अगर हम डिले को इग्नोर कर दें, ठीक है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उस डिले की वजह से क्या हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है। यानी लेट्स देयर इज़ अ 10 माइक्रोसेकंड डिले, ये स्विच जो है ये लेट्स 10 माइक्रोसेकंड के बाद ऑफ होता है, ठीक है, यानी इट टेक सम टाइम टू टर्न ऑफ। लेकिन हम वी डोंट केयर ऑफ दैट डिले, हमने अगर हम उस डिले को इग्नोर कर लें, ठीक है, एंड वी टर्न ऑन दिस S4, ठीक है, तो फिर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम सिग्नल्स अप्लाई करेंगे, वी विल अप्लाई इट इन सच अ वे दैट देयर शुड बी अ सर्टेन डेड टाइम इन दोज सिग्नल्स, ठीक है। यहाँ पे हमें डेड टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है, ताकि स्विचेस जो हैं वो क्या हो, वो यानी हमारा सर्किट जो है वो शॉर्ट ना हो, ठीक है। वो हम आगे इम्प्लीमेंटेशन में डिस्कस करेंगे कि कितना जो है वो डेड टाइम हमें इनफ होगा, लेकिन यहाँ पे वी नीड अ डेड टाइम, ठीक है। और फिर हम सिग्नल्स को भी डिस्कस करेंगे कि विच टाइप ऑफ सिग्नल्स हमें रिक्वायर्ड हैं स्विचेस को प्रॉपरली ऑन एंड ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि आगे आपको क्लियर हो जाएगा कि S1 अगर S2 जो है वो अगर ये क्या ये ऑन है, तो फिर करंट जो है वो फ्लो करेगा लोड में, और करंट विल फ्लो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। और उस वक्त हम अज्यूम करेंगे कि S3 एंड S4 आर इन ऑफ स्टेट, और अगर S3 और S4 ऑन है तो फिर करंट फ्लो करेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और हम अज्यूम करेंगे कि S1 एंड S2 आर इन ऑफ स्टेट। तो वी विल बी गेटिंग अ बाइपोलर स्क्वायर वेव अक्रॉस द लोड, ठीक है। और तो आगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन को फिर हम देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, ठीक है। यहाँ तक यूब के वर्किंग अब सबको समझ आ गई है कि नंबर ऑफ स्विचेस कितने हैं, और हाफ ऑफ द पीरियड के लिए कौन से स्विचेस ऑन होंगे, फिर नेक्स्ट हाफ ऑफ द पीरियड के लिए कौन से स्विचेस ऑन होंगे। तो होप ये आपको क्लियर है। और अच्छा, और यहाँ पे ये देखें कि जो आउटपुट वोल्टेज हमें रिक्वायर्ड है, दैट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ दिस EDC, ठीक है। तो जो भी हमें पीक वैल्यू रिक्वायर्ड होगी PWM सिग्नल की, that we can set it with the help of this source voltage। यानी अगर हमें 20 वोल्ट पीक का सिग्नल चाहिए, 20 वोल्ट पीक बाइपोलर वेव चाहिए लोड के अक्रॉस, तो जो EDC की वैल्यू है दैट वी विल अप्लाई ऑलमोस्ट 20। अच्छा, अब लोगों को ये भी पता है कि आइडियली जब हम आइडियल स्विच को लेते हैं तो वी इग्नोर द ड्रॉप अक्रॉस द ड्रेन एंड सोर्स, ठीक है। यानी अगर हम स्विचिंग के लिए मॉसफेट को यूज़ कर रहे हैं और ऑन स्टेट में भी ड्रेन और सोर्स के दरमियान एक स्मॉल वोल्टेज जो है वो अपीयर होगा, तो लेकिन यूजुअली हम उस वोल्टेज को जो कि हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। लेकिन तो थोड़ा बहुत जो है वो हमें जो डिफरेंस है वो आउटपुट और EDC की वैल्यू में मिल सकता है, एंड दैट डिफरेंस विल बी ड्यू टू द ड्रॉप अक्रॉस द स्विचेस। अगर हम आइडियल स्विचेस ले लें तो फिर देयर विल बी नो ड्रॉप अक्रॉस द स्विचेस, सो
जो सिग्नल हम जो वोल्टेज हम ADC यानी जो हम सप्लाई की सेट कर रहे होंगे सेम वी विल बी गेटिंग अक्रॉस द लोड। लेकिन अगर हम रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो देयर विल बी सम ड्रॉप अक्रॉस S1 एंड S2, जिसकी वजह से जो लोड वोल्टेज है इट विल बी लेस देन द DC सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, तो ये लोड वोल्टेज जो है इट विल बी less than the DC supply voltage due to the drop across the switches. Okay जी, now let's move to the implementation part. अब इसको आपने समझना है, ठीक है, इसको हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। और मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लूँ ताकि ठीक है ना। सर क्वेश्चन है सर, नॉर्मल जी जो एच ब्रिज सर ऑपरेशन होता है सर, काफ़ी सारे मतलब सर्किट्स हैं जो फ्लाई बैक डायोड को भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो सर उनका क्या पर्पस होता है सर? जो फ्लाई बैक डायोड है जो कि ड्रेन और सोर्स के पैरेलल में लगाते हैं, उसकी बात कर रहे हो? यस सर। दैट इज़ यूज कि अगर आपका जो RL लोड है ना, अगर यानी इंडक्टर भी है, हम अब लैब में बात करेंगे सिर्फ प्योर रेजिस्टिव लोड की। इफ देयर इज एन इंडक्टिव लोड तो फिर वो क्या हो सकता है कि आपने स्विच को क्लोज कर दिया है, ठीक है, तो इंडक्टर जो है यानी जब स्विच क्या होगा, ऑन होगा तो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होगी। अब जब स्विच क्लोज होगा तो फिर इंडक्टर विल ट्राई टू रिलीज इट्स एनर्जी। तो एनर्जी रिलीज करने के लिए इट विल जनरेट अ वेरी हाई वोल्टेज इफ दिस स्विच इज क्लोज, दिस स्विच इज ओपन। यानी आपने क्या किया, इसको ऑन किया, ठीक है, और इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हुई। अब आपने स्विच को ऑफ कर दिया है, तो इंडक्टर जो है वो एनर्जी रिलीज करने के लिए बहुत हाई वोल्टेज जनरेट करेगा, सो दैट के क्योंकि S3 S4 भी क्या होंगे, दे विल बी इन ऑफ स्टेट, और S1 को भी आपने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया है, तो इट नीड्स अ पाथ टू रिलीज दैट एनर्जी। तो वो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डायोड लगाते हैं, ठीक है, एंड दैट डायोड एक्चुअली प्रोवाइड पाथ टू द इंडक्टर एनर्जी या टू द इंडक्टर वोल्टेज, सो दैट इंडक्टर वोल्टेज यानी so that the energy of the so that inductor release its energy। ठीक है, तो राइट वो सर। हमें होती है when load is inductive load। और ये इंडक्टिव लोड के साथ लाजमी हम फिर यहाँ पे लगाते हैं डायोड, ताकि जो इंडक्टर अगर स्विचेस क्या है यानी स्विचिंग है यहाँ पे एक तरह से, स्विच अगर क्लोज है तो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होगी, और स्विच जब ओपन होगा तो फिर इंडक्टर एनर्जी रिलीज करेगा। तो जो डायोड्स हैं their diodes where they provide path to the current that actually flows due to the inductor voltage। ठीक है, राइट और वो सर। थोड़ी देर के लिए होता है, that it is फॉर स्मॉल ड्यूरेशन के लिए होता है, लेकिन अगर पाथ क्लोज है तो फिर मसला आ सकता है। ठीक है, यानी अगर इंडक्टर वोल्टेज को पाथ नहीं मिलेगा कि इंडक्टर जो है वो अपना करंट जो है वो फ्लो करवा सके, देन इंडक्टर विल इंक्रीज इट्स वोल्टेज फर्दर। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, दिस स्विच कैन डैमेज। तो स्विच को डैमेज से बचाने के लिए फिर दैट फ्री व्हीलर डायोड्स आर यूज्ड। लेकिन रेजिस्टिव लोड में वी डोंट नीड, क्योंकि रेजिस्टर इज नॉट एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट। सो ये इशू सिर्फ आता है अगर इंडक्टिव लोड है। ठीक है, तो इंडक्टिव लोड में यू ऑलवेज नीड अ फ्री व्हीलर डायोड अक्रॉस द स्विचेस। अच्छा, तो यहाँ पे दिस इज द सर्किट। ठीक है, तो इस सेट के इसमें क्या है, देयर आर 4 स्विचेस, Q1 Q2 Q3 Q4, और देयर इज अ लोड ऑफ 500 ओम। और यहाँ पे मैंने 2 LEDs भी यूज़ किए हैं। ठीक है, LED 1 और LED 2। दिस इज जस्ट के वी कैन सी के करंट जो है इट इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, फॉर हाफ ऑफ द पीरियड, and then for other half of the period it is moving from right to left। ठीक है, ये जस्ट यानी एनालिसिस को आसान बनाने के लिए थी कि या कि हमारा सर्किट जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। ठीक है, अगर LED जो है वो ऑन ऑफ हो रही है, तो ब्रिज इन्वर्टर ब्रिज सर्किट की वर्क मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट पे ड्राइवर ICs हैं, इसको हम देखेंगे डिटेल में। ठीक है, कि दे आर एक्चुअली इसके स्विचेस को हमने ऑन ऑफ कराना है। ठीक है, फॉर दैट वी विल बी यूजिंग दीज ड्राइवर ICs।
और हाउ दीज ड्राइवर ICs वर्क्स, वी विल डिस्कस दिस। तो ड्राइवर IC जो हम यूज़ करते हैं सिंगल फेज इन्वर्टर की, दैट इज़ IR2104, ठीक है। तो ये एक 8 पिन की IC है। पिन 1 जो है वो VCC पिन है, जिसके साथ हम क्या करते हैं, एक फिक्स DC सप्लाई लगाते हैं, ठीक है। और जो पिन 2 है दैट इज़ द इनपुट पिन, जिसके साथ हम कनेक्ट करते हैं PWM सिग्नल। और जो पिन 3 है दिस इज़ द SD पिन, ठीक है, दैट इज़ यूज्ड टू इनेबल और डिसेबल द IC, ठीक है। यानी ये इनेबल और डिसेबल पिन है। और पिन 4 जो है ये कॉमन पिन है, ठीक है, दैट वी कनेक्टेड विद द ग्राउंड। और पिन 6 जो है पिन 6 दिस इज द VS पिन, जो कि हम कनेक्ट करते हैं विद वन एंड ऑफ द लोड, ठीक है। तो यहाँ पे यू कैन सी के पिन 6 इज कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ द लोड रजिस्टर RL। और फिर पिन 5 जो है इट इज़ द LO पिन, इसको हम कनेक्ट करते हैं लोअर स्विच के साथ, ठीक है। तो इसमें एज ए सेड के देयर आर टोटल 4 स्विचेस, 2 अपर स्विचेस हैं और 2 लोअर स्विचेस हैं। तो ये जो LO पिन है इसको हम लोअर स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं, और ये जो HO पिन है इसको हम कनेक्ट करते हैं विद द अपर स्विच। तो यू कैन सी फ्रॉम द सर्किट डायग्राम दैट पिन 7 is connected to the gate of the upper switch, and pin 5 which is the LO pin is connected to the gate of the lower switch Q2, ठीक है। और फिर देयर इज अनदर पिन नंबर 8 इज कॉल्ड VB पिन। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कनेक्ट करते हैं VCC पिन के साथ थ्रू अ डायोड, ठीक है। और डायोड इसलिए लगाते हैं ताकि जो पिन नंबर 8 है इससे वापस सोर्स की तरफ करंट फ्लो ना करे, ठीक है। यानी सोर्स, यानी जो पिन 1 है इसको हम कनेक्ट करते हैं VCC के साथ, तो यहाँ पे, और पिन 8 को भी हम VCC के साथ कनेक्ट करते हैं थ्रू अ डायोड। और डायोड की आप देखेंगे इसको हम यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, तो इट विल ओनली पास करंट फ्रॉम द VCC टू द, या इट विल, ये सिर्फ क्या करेगा, ये पाथ प्रोवाइड करेगा करंट को जो कि VCC से फ्लो करेगा पिन 8 की तरफ, बट इट विल ब्लॉक द करंट दैट विल फ्लो फ्रॉम पिन 8 टू द पिन 1, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन सिर्फ ये है कि कि VCC पिन की तरफ से जो है वो करंट फ्लो करे पिन 8 की तरफ, बट नो करंट शुड फ्लो फ्रॉम पिन 8 टूवर्ड्स VCC पिन। फिर एक कैपेसिटर लगाते हैं, ठीक है, माइक्रोफेराड में, किसके क्रॉस, पिन 8 और VS के जो पिन 6 है। 0.01 का मैंने लगाया, ठीक है, लेकिन यूजुअली माइक्रोफेराड में इसकी वैल्यू होती है। और पिन 8 और पिन 6 के दरमियान ये हम कनेक्ट करते हैं। अच्छा, सिमिलरली इस IC को क्या कहते हैं, हाफ ब्रिज IC कहते हैं, ठीक है। तो हाफ ब्रिज IC की कनेक्शंस आप देख सकते हो सर्किट डायग्राम से कि HO एंड LO पिन आर कनेक्टेड टू द अपर एंड लोअर स्विच ऑफ द इन्वर्टर या ऑफ द ब्रिज सर्किट, और VCC पिन इज कनेक्टेड टू द DC पावर सप्लाई, SD पिन इज कनेक्टेड टू 5 वोल्ट DC सप्लाई, ठीक है। ये इनेबल डिसेबल पिन है, ठीक है। अगर 0 के साथ कनेक्ट करेंगे तो IC will not generate any output, ठीक है। तो IC को इनेबल करने के लिए हमने इसको एक 5 वोल्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट करना होता है। फिर देयर इज एन इनपुट पिन, ठीक है, पिन 2, जिसको हम क्या करते हैं, वी अप्लाई PWM सिग्नल। अच्छा, अब जो सिग्नल हम पिन 2 पे अप्लाई करते हैं, चलिए मैं आपको सिमुलेशन में दिखाता हूँ कि जो कि फेज डिफरेंस कितना होता है LO और HO सिग्नल में विद द इनपुट सिग्नल। यानी अगर हम जो सिग्नल हम पिन 2 पे अप्लाई करते हैं, व्हाट इज़ द phase difference, what is the value of phase difference between the signal that we are getting across pin 7 and pin 5। सिमिलरली राइट साइड पे भी हम ये सही सेम सर्किट यूज़ करते हैं, ठीक है। IR2104 का, ठीक है, नहीं जो Q3 और Q4 को ड्राइव करने के लिए भी हम एक IR2104 IC लगाते हैं, ठीक है। एंड सेम जो हमने डिस्कस किया है कि हम कैपेसिटर लगाते हैं, HO को अपर स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं, LO पिन को लोअर स्विच के साथ, फिर दरमियान में VS और
VB पेन के दरमियान एक कैपेसिटर लगाते हैं C1, और VB और VCC पेन के दरमियान भी एक डायोड लगाते हैं ताकि कोई करंट जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो ना करे, यानी सोर्स की तरफ करंट जो है वो फ्लो ना हो। ये थोड़ा बहुत क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ये पेन 3 के लिए यूज होता है। यस सर। आवाज सर ये हम 494 के साथ भी कर नहीं सकते? इरफान आवाज नहीं आ रही। सर हम ये TL494 IC के साथ भी कर नहीं सकते? नहीं, सर उसमें तो भी कॉमन मीटर और कॉमन जो बिल्कुल वेक्टर है बिल्कुल उसमें ऐसा तो है। एक में सर। हाँ, इसमें जो why we are using IR2104, the reason is कि ये जो अपर स्विच है ना, ये जो Q1 से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है, दिस Q1 की गेट पे हमें वोल्टेज चाहिए ग्रेटर देन द वोल्टेज दैट वी आर अप्लाइंग एट द ड्रेन ऑफ द Q1। जो वोल्टेज हम यहाँ पे हमने बात की ना कि दिस वन, अब ये जो EDC वोल्टेज है, लेट्स इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज 20 वोल्ट। ठीक हो गया? दिस EDC वोल्टेज इज 20 वोल्ट, लेट्स अज्यूम, या ये कंसिडर करें कि हमें 20 वोल्ट रिक्वायर्ड है लोड के का। EDC की वैल्यू हमने 20 रख ली और स्विचेस को हम आइडियल कंसिडर करें। तो जब इस वन क्या होगा, क्लोज होगा, तो फिर क्या होगा, इसके जो यानी इसका ड्रेन, सोर्स और गेट है ना, गेट को हम PWM के साथ कनेक्ट करेंगे और ड्रेन को हम ये इसी सप्लाई के साथ, और सोर्स को कनेक्ट करेंगे विद द लोड। अब ये जब ऑन होगा तो सोर्स के क्रॉस वोल्टेज कितनी अपीयर होगी? इट विल बी इक्वल टू दिस EDC वोल्टेज हमने, इट विल बी इक्वल टू 20 वोल्ट, यानी जो सोर्स वोल्टेज होगी जब इस वन ऑन होगा, ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू 20 वोल्ट। अब अगर गेट वोल्टेज जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 20, फिर ये क्या होगा, ये स्विच ऑन रहेगा, अदरवाइज ये स्विच जो है वो ऑफ हो जाएगा, क्योंकि वी नो दैट कि गेट पे वोल्टेज हमें कितनी चाहिए स्विच को ऑन करने के लिए, ग्रेटर देन द सोर्स वोल्टेज। अब अगर हम 5 वोल्ट का सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं गेट पे, ठीक है, यानी PWM सिग्नल हम अप्लाई कर रहे हैं 5 वोल्ट पीक एंड 0 वोल्ट, ठीक है, हाई वोल्टेज 5 और लो वोल्टेज 0। तो अगर ये ऑफ है, ये ऑन तो हो जाएगा जब हम इसको अप्लाई कर लेंगे 5 वोल्ट का सिग्नल, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये दोबारा ऑफ हो जाएगा। द रीजन है इसके ड्रेन पे वोल्टेज कितनी हो जाएगी, ये सोर्स पे इट विल बी इक्वल टू 20 वोल्ट, और गेट पे जो हमने सिग्नल अप्लाई किया होगा इट विल बी इक्वल टू 5 वोल्ट, तो इट विल टर्न ऑफ। तो इसको कैसे करते हैं? फॉर दैट यूज दिस ड्राइवर IC। ये ड्राइवर IC जो है ना, इट प्रोवाइड दैट हाई वोल्टेज एट द गेट सो दैट द Q1 रिमेन इन द ऑन स्टेट। अब ये कैसे प्रोवाइड करती है? अब आप यहाँ पे देखें कि लेट्स हमने जो वोल्टेज अप्लाई की है VCC पेन को, यहाँ पे मैंने आसानी के लिए बस ये किया है कि जो VDC है ना, थोड़ा सा इसको बता दूँ, जो EDC है वो मैंने 12 वोल्ट रखी है, और जो TL494 को जो मैं वोल्टेज दे रहा हूँ ना, DC वोल्टेज, वो भी 12 वोल्ट है, जस्ट एक सप्लाई यूज़ करने के लिए। लेकिन अब कंसिडर करने समझने के लिए कि जो वोल्टेज हमने अप्लाई की है, EDC जो वोल्टेज है वो 20 वोल्ट है, और जो IR2104 को जो हमने DC वोल्टेज हमने जो अप्लाई की है वो 5 वोल्ट है। ठीक है, just for understanding कि voltage at pin 1 is 5 volt and voltage that we are applying to the inverter is 20 volt। अब होगा ये कि ये जो कैपेसिटर है ना, ये जो कैपेसिटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर, जब ये स्विच क्लोज होगा तो क्या होगा, स्विच के ड्रेन पे जो सोर्स पे वोल्टेज होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इट विल बी इक्वल टू 20 वोल्ट, बिकॉज़ वी आर क्लेमिंग कि हम 20 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, और हम VDS जो ड्रॉप है इसको हम 0 ज्यूम करें, यानी आइडियल स्विच कंसीडर करें, तो VS विल बी इक्वल, यानी जो सोर्स वोल्टेज इट विल बी इक्वल टू 20 वोल्ट। ये जो HO पिन है ना, इस पे वोल्टेज पर कितनी होगी, इट विल बी इक्वल टू 5 वोल्ट। ठीक है, यानी ये जो IC है इट विल एड शिफ्ट टू द PWM सिग्नल, कितना शिफ्ट ये प्रोवाइड कर देगी ऑफसेट, या कितना ऑफसेट इसको इस सिग्नल को एड करेगी, इट विल इक्वल टू 20 वोल्ट, यानी जो वोल्टेज सोर्स पे अपीयर होगी ना, दैट मच शिफ्ट, दैट मच ऑफसेट इट विल एड इट टू द PWM सिग्नल दैट वी विल बी अप्लाइंग टू दिस IR2104। ठीक है, तो इस IC का फंक्शन क्या है कि ये it aid offset to the PWM signal, और offset यहाँ पे अगर आप सर्किट को दोबारा देखें
we need offset only for the upper switches, not for the lower. Lower तो जो source है वो ground के साथ connect, ठीक है. तो 5 volt signal is enough to turn on S2 and S4. यानी अगर S4 को हम 5 volt का PWM सिग्नल अप्लाई करेंगे, ये S4 क्या होगा, ऑन होगा. 0 volt कर देंगे तो ऑफ होगा. सिमिलरली S2 भी क्या होगा, if we apply 5 volt to S2, S2 will turn on. We will apply 0 volt, S2 क्या होगा, ऑफ हो जाएगा. लेकिन S1 और S3 जो अपर स्विचेस हैं, इसको हमने क्या करना होगा, we need a signal at the gate greater than the voltage that will appear at its source. अगर सोर्स वोल्टेज क्या है वो 20 वोल्ट है, तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, अगर हम ऑफसेट गेट कर लें अपने PWM सिग्नल में कितने वोल्ट का, 20 वोल्ट का, तो फिर ये क्या होगा, ये स्विच प्रॉपर्ली ऑन होगा, ठीक है. और जो हम क्या कर देंगे, ऑफसेट रिमूव कर देंगे, तो ये स्विच क्या होगा, ये क्लोज होगा. So this IC is actually used to provide that offset to the upper switches. Yeah. While जो TL494 है, that can't be used to provide that offset. TL494 का अलग फंक्शन है, वो हम यूज करते हैं DC को PWM सिग्नल में जनरेट करते हैं. PWM सिग्नल जनरेट कराने के लिए हम यूज करते हैं. लेकिन that IC can't be used to aid DC offset in the signal. IR2104 का जो फंक्शन है, it is mainly used to aid offset in the DC offset in the input signal. और DC offset सिर्फ हमें upper switches को drive करने के लिए चाहिए. We don't need any DC offset for the lower switches. So ये जो IC है, it will aid offset. और कितना offset ये aid करेगी, depend on के जो voltage हम क्या कर रहे हैं, जो ADC पे जो ADC voltage की जो value होगी, that much offset it will aid it to the PWM signal that we will be applying to this IC. यानी अगर हम ये 5 volt का सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं और जो ADC वोल्टेज है वो 20 है, तो इसका मतलब ये है कि दिस IC will aid offset of 20 volt to the PWM signal. तो फिर ये जो पीक वोल्टेज होगी, जो कि हमने जो सिग्नल हमने इस IC को अप्लाई की होगी, उसकी क्या होगी, इट विल बी इक्वल टू 25 volt. ठीक है. यानी जो अब जब स्विच क्या होगा, ऑन होगा, तो Q1 की गेट पे कितनी वोल्टेज होगी, 25 volt. और Q2 के गेट पे कितनी वोल्टेज होगी, इट विल बी इक्वल टू 5 volt. यानी इट विल बी इक्वल टू द वोल्टेज जो कि हम इस IC को जो सिग्नल हम अप्लाई कर रहे होंगे. सिर्फ क्या होगा, HO में सिर्फ क्या होगा, दैट विल बी अ DC ऑफसेट. और वो DC ऑफसेट कितना होगा, डिपेंड ऑन के सोर्स पे हमें कितनी वोल्टेज मिल रही होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट. सो दैट मच ऑफसेट will be present in the signal that we will be getting across the HO pin. और जो LO pin है, LO pin पे जो हमें वोल्टेज मिलेगी, it will be equal to the voltage that it will be equal to the signal that we will be applying at pin number 2. अगर हम 5 volt का PWM सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं पिन 2 पे, सेम we will be getting across पिन 5. और अगर हम 10 volt का PWM सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं पिन 2 पे, सेम सिग्नल we will be getting across पिन 5. लेकिन अगर हम पिन 7 और पिन 2 के सिग्नल्स को कंपेयर करेंगे, तो देन देयर विल बी एन ऑफसेट. ठीक है. और वो ऑफसेट कितना होगा, वो डिपेंड करेगा कि ड्रेन टू सोर्स के क्रॉस कितना ड्रॉप आ रहा है. ठीक है. सो VDC माइनस दैट ड्रॉप. तो अगर लेट्स के 20 अप्लाई कर रहे हैं और 1 volt ड्रॉप जो है वो ड्रेन और सोर्स के क्रॉस है, तो 19 volt क्या होगा, देयर विल बी ऑफसेट इन द सिग्नल दैट वी विल बी गेटिंग अक्रॉस पिन 7. ठीक हो गया. जी स्टूडेंट्स. जैसा समझ आ रहा है. थैंक्स. So this is the, we are asked that why we are using IR2104. The reason is that we need a DC offset in the PWM signal to turn on Q1 and Q3 properly, and this IR2104 IC is used to provide that required offset in the PWM signal. और ऑफसेट से मुराद यहाँ पे वो DC ऑफसेट है. ठीक है. Okay, so now let me show you the simulation of this circuit. ठीक है. बाकी आप सर्किट तो अब आप बना लेंगे Proteus पे या Multisim पे. तो means कि you need 4 switches, you need fixed resistor RL. Also अगर आपने देखना है कि करंट जो है वो दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, for that you can use 2 LEDs. और बाकी IR you need 2 IR2104, क्योंकि जो IR2104 IC it is a half bridge IC. ठीक है.
इट कैन ओनली ड्राइव 2 स्विचेस। तो कनेक्शंस आप देख सकते हैं हाउ कि आपने इसको कनेक्ट कैसे करना है Q1 Q2 के साथ और Q3 Q4 के साथ। बाकी थोड़ा बहुत मैंने आईसी का बता दिया। नाउ लेट मी शो यू द सिमुलेशन ऑफ सिंगल फेज इन्वर्टर। तो ये सेम सर्किट है जो अभी आप लोग को मैंने दिखाया है, ठीक है। सेम 4 स्विचेस हैं, 2 IR2104 ICs हैं, डायोड्स हैं, ठीक है, कैपेसिटर्स हैं और SD पेन को कनेक्ट किया है 5 वोल्ट कांस्टेंट सप्लाई के साथ आईसी को इनेबल करने के लिए, ठीक है। और बाकी जो है वो PWM सिग्नल्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे लेट शो यू के पहले मैं आपको आउटपुट दिखा दूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आसानी के लिए मैंने क्या किया है कि जो इन्वर्टर को मैं जो DC वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ सेम आई अप्लाइंग टू द IR2104, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा क्या हो ये इक्वल हो। ऑलवेज ये क्या होती है, जो इन्वर्टर का वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो ज़्यादा होती है, मे बी 220 वोल्ट, मे बी 400 वोल्ट, मे बी इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, डिपेंड ऑन के हमें जो आउटपुट पे कितनी वोल्टेज रिक्वायर्ड है। लेकिन जो VCC पेन पे यानी जो IR2104 को जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं ये यूजुअली क्या होती है 10 वोल्ट तक या 12 वोल्ट तक या 5 वोल्ट तक हो सकती है, ठीक है। लेकिन जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी यानी अपनी आसानी के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेम वोल्टेज अप्लाई की है इन्वर्टर को और सेम वही वोल्टेज मैं अप्लाई कर रहा हूँ IR2104 को। अच्छा, तो लेट मी शो यू द आउटपुट सिग्नल। तो आउटपुट हमें मिलेगी लोड के क्रॉस एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमें स्क्वायर वेव हमें मिलनी चाहिए। तो दीज आर दी सिग्नल्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसको मैंने क्या किया है कि एक मिनट कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे ये जो आपको ये 2 सिग्नल्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। सो जो RL के लेफ्ट टर्मिनल पे जो वोल्टेज है ना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये एक सिग्नल उसको शो कर रहा है। और जो RL के राइट टर्मिनल पे जो सिग्नल हमें मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये जो सेकंड सिग्नल है ये उसको शो कर रहा है। और RL के, क्योंकि हम तो RL के क्रॉस देख रहे हैं, तो RL के क्रॉस हमें वोल्टेज क्या मिलेगी, इट विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द टू सिग्नल। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ठीक है, कि इफ़ यानी लेट्स इसको अगर मैं लेबल कर लूँ या फिर आप इसको कंसिडर करें कि जो लेफ्ट टर्मिनल है ना लोड का, दैट इज़ A यानी नोड A, और जो राइट टर्मिनल है लोड का, दैट इज़ नोड B। तो ये जो है दिस इज जो फर्स्ट सिग्नल है दैट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस नोड A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और जो सेकंड सिग्नल इट शोज द सिग्नल at node B with respect to ground. So what will be the signal across node A and node B? So it will be equal to the difference of the two signal. तो यहाँ पे clearly you can see कि if voltage at node A is high, then voltage at node B is low. ऐसा ही है ना, क्योंकि जब ये क्या होगा नोड A पे अगर वोल्टेज हाई है इसका मतलब ये है कि Q1 and Q4 आर इन ऑन स्टेट, ठीक है। तो Q1 अगर Q4 ऑन है तो इसका मतलब है कि अगर हम आइडल कंसिडर कर लें तो Q4 क्या होगा, यानी जो नोड B है इट विल बी एट ग्राउंड पोटेंशियल, और जो नोड A है इस पर पोटेंशियल क्या होगा इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर Q1 एंड Q4 क्या है वो ऑन है तो करंट विल फ्लो फ्रॉम नोड A टूवर्ड्स नोड B, और पोटेंशियल जो होगी नोड A पे वो विद रिस्पेक्ट टू नोड B इट विल बी इक्वल टू द वोल्टेज यानी इक्वल टू V1। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक अगर नोड A हाई है तो फिर नोड B पे वोल्टेज क्या है वो 0 है, और अगर नोड B जो है वो क्या है वो हाई है तो नोड A पे वोल्टेज क्या है वो 0। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट?
यानी या मैंने इसको अलग अलग आपको दिखाया है, ठीक है। नोड ए पे वोल्टेज को अलग दिखाया, नोड बी के वोल्टेज को अलग दिया गया है, ठीक है। तो नोड ए पे हमें किस टाइप का सिग्नल मिलेगा यू कैन सी, और नोड बी पे हमें बाइपोलर स्क्वायर वेव ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर नोड ए हाई है, नोड ए पे अगर वोल्टेज हाई है तो वोल्टेज एट नोड बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी लो, और अगर नोड बी पे वोल्टेज हाई है तो नोड ए पे वोल्टेज ग्राउंड के रिस्पेक्ट से क्या होगी, वो ज़ीरो होगी। नाउ लेट मी शो यू the output that we will be getting across load resistor। इसको मैं ग्राउंड की जगह ना, इसको अगर मैं कनेक्ट करूँगा विद अक्रॉस द लोड, यानी आर एल के क्रॉस लगाऊंगा, तो फिर मुझे वोल्टेज क्या होगी, आर एल के क्रॉस ही मिलेगी। और ये वोल्टेज हमारे पास क्या होनी चाहिए, ये हमें मिलनी चाहिए कनेक्ट नहीं हो रहा, इसके लिए तो इसी जगह बनानी होगी। चलिए हो गया, ठीक है। सो नाउ लेट मी शो यू दी, ठीक है। so now this is the output signal, ठीक है। तो clearly you can see कि it is a bipolar signal। और कितनी वोल्टेज हम अप्लाई करें, वी आर अप्लाइंग ए 12 वोल्ट, ठीक है। V1 जो हमने वोल्टेज अप्लाई की है इन्वर्टर को, वो 12 वोल्ट है, लेकिन हमें जो वोल्टेज मिल रही है इट इज़ इक्वल टू +10 एंड -10, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये जो चैनल बी को मैंने ऑफ किया, ठीक है, चैनल ए को मैंने कनेक्ट किया आर एल के क्रॉस। तो चैनल ए के क्रॉस जो हमें वोल्टेज मिल रही है आर एल के क्रॉस, इट इज़ अ बाईपोलर स्क्वायर वेव, जिसकी पीक वैल्यू क्या है, वो पॉजिटिव पीक वैल्यू +10 है और नेगेटिव पीक वैल्यू क्या है, वो -10 है। और ये जो डिफरेंस आ रहा है 2 वोल्ट का, इट इज़ ड्यू टू द स्विचेस, यानी 1 वोल्ट का जो है वो ड्रॉप Q1 के क्रॉस 1 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है और Q4 के क्रॉस भी 1 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। सिमिलरली Q3 और Q4 के क्रॉस जो ड्रॉप है वो भी 1 वोल्ट है, ठीक है। तो यानी पॉजिटिव साइड, यानी +10 वोल्ट इफ़ वी आर, अगर हम कंसिडर करें कि जो नोड ए के क्रॉस वोल्टेज है, अगर Q3 और Q2 जो है वो ग्राउंड है यानी ऑफ है, तो फिर इट इज़ इक्वल टू 10 वोल्ट। अगर 10 वोल्ट है तो इसका मतलब है कि 1 वोल्ट is appearing across Q1 and 1 volt is appearing across Q4, and similarly Q3 और Q4 अगर ऑन है तो फिर Q3 के क्रॉस जो वोल्टेज है वो भी 1 वोल्ट है, Q2 के क्रॉस वोल्टेज भी 1 वोल्ट है, तो रिमेनिंग वी आर गेटिंग अक्रॉस द लोड। जी क्लियर हो गया ये? यस सर। ठीक है ना। सर प्योर साइन प्योर साइन वेव के लिए इसको बेस्ट है। और यहाँ पे एक फिल्टर लगाना होगा, ठीक है, आउटपुट से इसको, ठीक है, इसको प्योर साइन वेव में कन्वर्ट करने के लिए। सो इट इज़ नॉट अ प्योर साइन वेव, इट इज़ जस्ट अ बाइपोलर स्क्वायर वेव, but it can be converted into a pure sine wave using a filter। ठीक है, यस सर। ओके, हमने आउटपुट भी देख ली, ठीक है, और नोड ए के क्रॉस वोल्टेज भी हमने देख ली थी अभी ग्राउंड के रिस्पेक्ट से, और नोड बी के क्रॉस भी हमने ग्राउंड के रिस्पेक्ट से देखी थी, और एलईडीज़ की ब्राइटनेस को भी आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑन ऑफ हो रही हैं, ठीक है ना। तो दिस इज़, इसका मतलब है कि और सर्किट इज़ वर्किंग प्रॉपरली, और आर एल में करंट जो है वो कभी यानी हाफ पीरियड के लिए लेफ़्ट से राइट की तरफ फ्लो कर रहा है, और फिर हाफ पीरियड के लिए इट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एंड वी आर, इसमें कोई यानी वी आर गेटिंग बाईपोलर स्क्वायर वेव विदाउट एनी डिस्टॉर्शन, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। अच्छा, अब नाउ लेट मी शो यू कि अगर हम कंपेयर करें जो PWM सिग्नल में अप्लाई कर रहे हैं इनपुट पिन पे, ठीक है, विद द LO पिन, ठीक है। तो लेट मी शो यू दैट, इसको मैंने किसके साथ कनेक्ट किया है, सॉरी, ये जस्ट फेज डिफरेंस फाइंड करने के लिए, ठीक है। ये मैं आपको
चैनल ए को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ एलो पेन के साथ। सॉरी एलो सिग्नल देखने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ चैनल ए, और लेट कैन यूज़ चैनल बी टू सी द PWM signal that we are applying to IR2104. ठीक है, ग्राउंड तो कॉमन होगा, ठीक है। अच्छा, लेट्स सी के हमें क्या आउटपुट मिलती है। इसको भी ऑन कर लेता हूँ, स्केल मैंने सेम रखा है। ठीक है, अब आप अगर देखें कि दोनों एलो और जो इनपुट सिग्नल है उसमें फ़र्क क्या है, तो एक तो ये देखें कि एम्पलीट्यूड का फ़र्क है। हम अप्लाई कर रहे हैं 5 वोल्ट का सिग्नल, इसको मैं 5 वोल्ट सेलेक्ट करता हूँ। ये चैनल बी के लिए स्केल मैंने सेलेक्ट किया 5 वोल्ट। तो वी आर अप्लाइंग a 5 volt signal to the IR2104 and we are getting a 12 volt signal across LO pen. इसका मतलब ये है कि जो पीक वोल्टेज है ना LO की, it depend on the voltage that we are applying to the VCC. It does not depend on the voltage that we are applying to pen 2. It depends on the voltage that we are applying to VCC. तो अगर हम 5 वोल्ट का सिग्नल अप्लाई करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि एलो वोल्टेज क्या होगी, इट विल बी आल्सो 5 वोल्ट सिग्नल, ठीक है। एलो की जो पीक वैल्यू होगी, इट विल डिपेंड ऑन द वोल्टेज एट वीसीसी पेन। तो हमने वीसीसी को 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया, इट मीन कि जो एलो की जो हाई वोल्टेज होगी वो 12 होगी और जो लो वोल्टेज होगी वो 0 होगी। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ अगर आप नोटिस कर लें कि जो फेज डिफरेंस है ना एलो सिग्नल और इनपुट सिग्नल में, वो क्या है, वो 0 है। नहीं, दे आर आउट ऑफ फेज, ये आउट ऑफ फेज भी है, 0 नहीं है। एलो एंड और जो पेन 2 पे जो हम एक्सटर्नल सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, दे आर आउट ऑफ फेज। क्या मतलब है आउट ऑफ फेज का, कि अगर एलो हाई है, यानी अगर इनपुट सिग्नल जो अप्लाइड इनपुट PWM है, अगर वो लो है तो फिर दी एलो इज हाई, और अगर ये हाई है तो फिर एलो इज लो। ये डिफरेंस समझ आ रहा है कि एलो और जो अप्लाइड PWM है इसमें क्या फ़र्क है। स्टूडेंट्स, यस सर, ये जो ऊपर वाली वेव फॉर्म है ये एलो है। यस सर जी, और जो नीचे वाली वेव फॉर्म है वो जो सिग्नल हम अप्लाई कर रहे हैं IR2104 को, ये वो है। अब आप दोनों में देखें कि जो फ्रिक्वेंसी है वो सेम है, यानी जो सिग्नल हम इनपुट पे अप्लाई करेंगे IR2104 की, सेम फ्रिक्वेंसी का सिग्नल हमें आउटपुट पे मिलेगा। लेकिन जो पीक्स वैल्यू हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय द वोल्टेज एट पेन VCC। जो वोल्टेज हम VCC पेन पे अप्लाई करेंगे, वही पीक्स की वैल्यू हमें एलो पेन पे मिलेगी। फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी, और एलो और जो अप्लाइड सिग्नल उसमें फेज डिफरेंस क्या होगा, इट विल बी 180 डिग्री। क्लियर? सर जो ऑफसेट होगी वोल्टेज वो सिर्फ एचओ पे इफेक्ट करेगी, एलो पे नहीं यस, करेगी। वो एचओ पे इफेक्ट करेगा, बिल्कुल। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था कि जो अप्लाइड PWM है और जो एलो पे जो हमें सिग्नल मिल रहा है, दे आर आउट ऑफ फेज, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये आउट ऑफ फेज है। सर एक होना ही था। और नाउ लेट मी शो यू के एचओ पे जो हमें सिग्नल मिलेगा, वो उसका फेज डिफरेंस देखते हैं और उसकी पीक वैल्यूज भी देखते हैं। This is the signal that we are applying across HO with respect to ground. अब यहाँ पे देखें कि कितने वोल्ट का सिग्नल मिल रहा है। 10 वोल्ट का एक डिवीजन है, तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22 वोल्ट। द पीक वैल्यू ऑफ द HO सिग्नल इज 22 एंड द लोअर पीक इज 0। और अब यहाँ पे देखें कि अगर हम PWM जो इनपुट पे जो हम दे रहे हैं IR2104 IC को, it is in phase with the signal that we are getting across the HO signal, across the HO pen. यहाँ पे देखें ना, अगर
हाई है तो फिर एच ओ इज़ आल्सो हाई, अगर इनपुट सिग्नल क्या है वो लो है तो एच ओ सिग्नल इज़ लो। फ़र्क सिर्फ क्या है, डिफरेंस इज इन द एम्पलीट्यूड। तो वो मैंने आपको कहा था कि कितना इसमें हाउ मच ऑफसेट एड, कितना ऑफसेट एड होगा इस सिग्नल में जो एच ओ पे मिलेगा, इट विल बी इक्वल टू द वोल्टेज दैट वी आर गेटिंग इट नोड ए। तो नोड ए पे हमें वोल्टेज मिल रही थी 10 वोल्ट, 10 प्लस 12 कर देंगे क्योंकि BCC की वोल्टेज क्या है वो 12 है। 10 वोल्ट का ऑफसेट जब ऐड हो जाएगा तो इट विल रीच टू 22। So we are getting almost a 22 volt peak signal across HO pen, and the phase difference between the HO signal and the applied PWM is 0 degree. The phase difference between LO signal and the applied input is 180 degree. They are out of phase. The peak value of the LO is equal to V1, ठीक है, and the peak value of the HO is equal to V1 plus VA, ठीक है. Same for the right side. For the right side of the single phase inverter. आ गई है समझ? यस सर। सर ये एक दफ़ा बता दें, VA सर कौन सी वोल्टेज है? कौन सी? सर VA अभी आपने कहा कि जो हमारे पास HO जो है वो V। तो ये अगर हम जो RL है ना इसके एंड्स को लेबल कर दें तो मैं इसके लेफ्ट एंड को कह रहा हूँ कि दिस इज़ A, और जो RL का जो राइट एंड है, जो राइट टर्मिनल है, इसको मैं B कह रहा हूँ अपनी आसानी के लिए, ठीक है, कि लेट दिस इज़ नोड A, ठीक है, ये क्या है, नोड B है। वो सिर्फ जो RL के जो है ना टर्मिनल उसको लेबल किया है A और B से, राइट सर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि एच ओ और एल ओ में क्या फ़र्क है। एच ओ और एल ओ जो सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एल ओ और एच ओ दिखाता हूँ। अभी तक मैंने आपको एल ओ को हमने कंपेयर किया है इनपुट पी डब्ल्यू एम के साथ, फिर एच ओ को भी हमने कंपेयर किया विद द इनपुट पी डब्ल्यू एम। नाउ लेट्स कंपेयर एच ओ विद द एल ओ सिग्नल। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से ये जो चैनल बी है इसको कनेक्ट करता हूँ विद द एल ओ, so that we can see the LO signal and HO signal. और स्केल जो है वो थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये देखें। तो आई होप कि ये आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। जो टॉप सिग्नल इज़ HO सिग्नल और जो लोअर सिग्नल है इज़ द LO सिग्नल। अब यहाँ पे देखें बोथ सिग्नल आर आउट ऑफ फेज, ठीक है ना, यानी अगर HO क्या है वो हाई है तो फिर LO क्या है, इट इज़ लो, और अगर LO हाई है तो फिर HO इज़ लो। क्लियरली देयर यानी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। और एम्पलीट्यूड का भी फ़र्क है। LO का जो एम्पलीट्यूड है वो V1 की इक्वल है, और HO का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, वो V1 प्लस VA की इक्वल, ठीक है। और यानी अब आप देखें कि Q1 क्या होगा जब यानी Q1 क्या होगा, ऑन होगा, तो उस वक्त Q2 क्या होगा, वो ऑफ होगा। क्यों ऑफ होगा? क्योंकि Q2 को जो सिग्नल मिल रहा होगा वो क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू 0 वोल्ट। तो अगर Q2 के गेट पे अगर वोल्टेज क्या है वो 0 है तो इसका मतलब है कि Q2 क्या होगा, वो ऑफ होगा। और Q1 पे गेट पे वोल्टेज अगर हाई है तो इसका मतलब है Q1 ऑन होगा। सिमिलरली Q3 को जो वोल्टेज मिल रहा होगा, अगर हम राइट साइड की तरफ से देखें तो Q3 को जो वोल्टेज मिल रहा होगा वो क्या होगा, वो लो होगा, ठीक है। इट शुड बी, ये लो होना चाहिए Q3 को, क्योंकि अगर Q1 ऑन है तो Q3 जो है ये ऑफ होना चाहिए। तो दिस शुड बी लो, जो Q3 के गेट पे वोल्टेज इट शुड बी लो, और Q4 के जो गेट पे वोल्टेज इट शुड बी हाई, क्योंकि अगर Q1 ऑन है तो फिर Q4 ऑफ ऑन होना चाहिए, फिर करंट फ्लो करेगा नोड A से नोड B की तरफ। लेकिन अगर Q4 ऑफ है, अगर ऑफ है तो फिर भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि Q3 को हमने Q3 ऑफ है, अगर Q4 भी ऑफ है तो फिर नो करंट विल फ्लो। तो अगर Q1 क्या है वो हाई है तो फिर Q4 शुड आल्सो बी हाई, और Q3 एंड Q2 क्या होंगे, इट शुड बी लो, यानी गेट पे जो वोल्टेज है Q3 और Q2 ट्रांजिस्टर की वो लो होनी चाहिए, और Q1 और Q4 की हाई होनी चाहिए।
ये बात समझ में आ गई है कि एक तो एलओ और एचओ क्या ये आउट ऑफ फेज हैं, तो यानी अगर Q1 के गेट पे वोल्टेज हाई होगी तो फिर Q2 के गेट पे वोल्टेज क्या होगी, वो लो होगी। सिमिलरली जो राइट साइड है यहाँ पे भी हमें सेम वोल्टेजेस चाहिए गेट पे। Q3 पे हमें लो वोल्टेज चाहिए और Q4 पे हमें हाई वोल्टेज चाहिए, ताकि Q1 और Q4 जो है वो एक टाइम पे ऑन हो और Q3 और Q2 जो है वो एक टाइम पे ऑन हो। स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग मी Yes, और नॉट? ठीक है, yes, अच्छा। sir. तो जो पॉइंट है ना जिसकी तरफ मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमने अभी पढ़ा कि ये जो अप्लाइड PWM है ना, इट इज़ आउट ऑफ फेज विद LO एंड इट इज़ इन फेज विद HO। तो ये जो अप्लाइड PWM है ना, यानी हमने दो PWM सिग्नल्स भी अप्लाई करने हैं, दो IR2N04 को, दे शुड आल्सो बी आउट ऑफ फेज। ये जब आउट ऑफ फेज होंगी फिर क्या होंगे, स्विचेस क्या होंगे, वो प्रॉपरली ऑन ऑफ होंगे एंड वी विल बी गेटिंग अ बाइपोलर स्क्वायर वेव। लेकिन अगर हम सेम PWM सिग्नल अप्लाई करेंगे इनपुट पिन पे और यहाँ पे भी हम अगर इनपुट पिन पे, क्योंकि मैंने देखें ये दो सिग्नल्स यूज़ किए हैं अलग अलग, एक V4 है और एक V5 है, और ये दोनों क्या दे आर आउट ऑफ फेज। ठीक है, ये भी आउट ऑफ फेज होने चाहिए, अदरवाइज हमारा सर्किट जो है वो काम नहीं करेगा। क्योंकि अब थोड़ा सा अगर आप सोचें, इस पर सोचोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वाई वी नीड आउट ऑफ फेज PWM सिग्नल टू ड्राइव टू एट द इनपुट ऑफ TL49 IR2104। ठीक है, ये बात समझ में आई है? Yes, sir. यस सर। ठीक है ना, इसको जब आप सिमुलेट करोगे, ठीक है, तो सिमुलेशन में तो वो कोई खतरा नहीं होता, ठीक है, कि आपका सर्किट जो है वो जल जाएगा या इस तरह का कोई इशू आएगा। तो अगर आपको आउटपुट ठीक नहीं मिल रही तो इट मे बी कि यू आर जो फेज डिफरेंस है ना V4 और V5 में, इसका आप क्या कर रहे हो, यू आर नॉट कंसिडरिंग इट। ठीक है, सो तो इसको भी आपने कंसिडर करना होता है कि ये जो है ना, अगर V4 हाई है, ठीक है, तो V5 शुड बी लो, क्योंकि अगर V4 हाई है तो फिर HO विल बी हाई, और अगर V5 जो है वो लो है तो फिर LO विल बी हाई। तो ये हमें रिक्वायर्ड है कि HO अगर हाई है तो फिर जो सेकंड TL494C है उसके LO पे हमें हाई सिग्नल मिलना चाहिए, ताकि Q1 और Q4 जो है ये ऑन हो। ठीक है, फिर Q3 और Q2 जो है वो ऑन हो जाए। जी गाइस, कोई क्वेश्चन? चलें, लेट मी शो यू कि मैं आपको ये Q1 और Q4 का, अभी मैंने आपको क्या दिखाया, दीज आर HO एंड LO ऑफ दिस IR2104, जो कि हम Q1 और Q2 को ड्राइव करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। नाउ लेट मी शो यू कि अगर हम Q1 और Q4 के गेट सिग्नल्स को कंपेयर करते हैं तो ये इन फेज होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ कि ये जो मैंने चैनल B को कनेक्ट किया है येलो पेन के साथ, इसको मैं क्या करता हूँ, मैं कनेक्ट करता हूँ ये जो सेकंड IR2104 है इसके येलो के साथ। नाउ यू विल सी के ये क्या होंगे, दे विल बी इन फेज। अभी आउट ऑफ फेज है ना, तो ये अब क्या होनी चाहिए, इट शुड बी इन फेज। ये देखें, अब ये इन फेज है। अगर HO हाई है तो फिर LO इज़ आल्सो हाई, और HO अगर लो है तो फिर LO इज़ आल्सो लो। ठीक है, तो ये हमें रिक्वायर्ड है कि अगर Q1 के गेट पे वोल्टेज हाई है तो Q4 के गेट पे वोल्टेज हाई होनी चाहिए, सिमिलरली फॉर Q3 एंड Q2। ठीक है, और ये हम कैसे कर रहे हैं, हाउ वी आर मीटिंग दिस रिक्वायरमेंट, कैसे हम मीट कर रहे हैं इस रिक्वायरमेंट को, बाय अप्लाइंग PWM सिग्नल ऑफ आउट ऑफ फेज। ठीक है, यानी जो हम PWM सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं TL494 को, दे आर आउट ऑफ फेज, देयर एम्पलीट्यूड इज इक्वल, देयर फ्रिक्वेंसी इज सेम। फ्रिक्वेंसी में कोई फ़र्क नहीं है, एम्पलीट्यूड में भी कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ क्या है 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है V4 और V5 में, जिसकी वजह से हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट्स मिल रहे हैं।
जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वी कैन डिस्कस। डियर स्टूडेंट्स, सर वो लैब्स बता देते हैं, आज आपने कहा था आप नेक्स्ट वीक में बस बताएंगे। चलें उसकी तरफ आते हैं। अभी बस लैब कंप्लीट हो गई है, आते हैं।